Hello everyone, welcome on Mahori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma, Faculty of English Literature. In this video, we will talk about a poem, and the poem name is The Wild Swans at Cool, and this poem is in BA third year students syllabus of MDS University, and this poem is written by Irish poet W.B. Yeats, and he won also Nobel Prize in 1923. ओके लेट्स स्टार्ट। जो W.B. येट्स पोएट हैं वो एक आयरिश पोएट हैं और जब हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसके बाद के ये जो मतलब उनका सिमिलरिटी का है इनका टाइम स्पेन, जैसे इनका टाइम स्पेन 1865 टू 1939, तो इन्होंने वो वर्ल्ड वॉर का पूरा सीन देखा और मतलब उसको उस टाइम तक वो चल रहा था वर्ल्ड वॉर का जो भी है, तो इन्होंने उस बेस पे भी इस पोएम को लिखा है। और भी इसकी बहुत सारी थीम्स हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में इनके साथ क्या हुआ, जैसे इनको जो दो लड़कियां को इन्होंने प्रपोज़ किया, उन्होंने इनको ना प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो इस बेस पे इन्होंने ये पोएम लिखी है। बट फिर भी इस पोएम में क्या है हम जानेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा W.B. येट्स का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। विलियम बटलर येट्स, इनका पूरा नाम है विलियम बटलर येट्स। इनका लाइफ स्पेन 1865 टू 1939 है। वॉज एन आयरिश पोएट एंड वन ऑफ द फोरमोस्ट फिगर ऑफ 20th century literature, a pillar of both the Irish and British literary establishments. He helped to found the Abbey Theatre and his later years served as a senator of the Irish Free State for 2 terms. इन्होंने एक एबे थिएटर को भी फाउंड किया। Then, Yeats was a driving force behind the Irish literary revival along with Lady Gregory, Edward Martyn and others. Lady Gregory जो है उनको भी इन्होंने प्रपोज किया था। W.B. Yeats was born at Sandymount in a country Dublin, Ireland. He was educated in London. He spent childhood holidays in country Sligo and studied poetry from an early age when he became fascinated by Irish legends and occult, which these topics features in the first phase of his work, which lasted roughly until the turn of the 20th century. His earliest volume of verse was published in 1889, and its soapaced and lyrical poems displayed Yeats' depicts of Edmund Spenser, P.B. Shelley, and the poets of the pre-Raphaelite Brotherhood. From 1900, his poetry grew more physical and realistic. From 1900, he largely renounced the transcendental beliefs of his youth, though he remained preoccupation cycle theories of life. In 1923, he was awarded the Nobel Prize in Literature. Actually, रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में, इनसे 10 साल पहले नोबेल प्राइज़ मिला था, और फिर उसी को इन्होंने गीतांजलि को इन्होंने इंग्लिश में लिखा, उसका ट्रांसलेशन मान सकते हैं आप, उसके लिए इनको 1923 में नोबेल प्राइज़ मिला। देन हम देखते हैं कि पोएम में क्या है, पोएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। द वाइल्ड स्वान्स एट कूल इज़ अ लिरिक पोएम by the Irish poet William Butler Yeats, written between 1916 and early 1917. 1916 और early 1970 के बीच में लिखी गई है। द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द जून 1917 issues of the Little Review and became the title poem in the Yeats 1917 and 1919 collections. The Wild Swans at Cool. The poem has a very regular stanza form, 5-6 line stanzas, each written in a roughly iambic meter actually. This with the first and third lines in tractameter, the second, fourth and sixth lines in trimeter, and the fifth line in pentameter, so that the pattern of stressed syllables in each stanza is 4-3, 4-3, 5-3. The rhyming scheme is in each stanza A, B, C, B, D, D. ये सब चल रही है। ओके, अब है अबाउट द पोएम। ये तो इंट्रोडक्शन था पोएम का कि ये पोएम कैसे लिखी गई, 1916 और 17 के बीच में लिखी गई, देन 1917 में इनके कलेक्शन में पब्लिश हुई। देन इसका राइमिंग स्कीम क्या है, देन इसको किस अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, 5 स्टेंजाज हैं, उनको किस अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, ट्रीटामीटर में लिखा गया है, पेंटामीटर में लिखा गया है, ये सारी चीज़ें इसके इंट्रोडक्शन में लिखनी है आपको। देन अबाउट द पोएम,
It was written during a period when Yeats was staying with his friend Lady Gregory at her home at Cool Park, and the assembled collection was dedicated to her son Major Robert Gregory, a British airman lost during a friendly fire incident in World War First. क्या हुआ था? It was written during a period. ये उस टाइम लिखी गई when Yeats was staying with his friend. जो Yeats हैं वो अपनी फ्रेंड के साथ रुके हुए थे जिसका नाम है लेडी ग्रेगरी, एट हर होम अपने घर में, एट कूल पार्क, और जो कूल पार्क है ये इनके उस घर के पास था, एंड द असेंबल्ड कलेक्शन वॉज डेडिकेटेड टू हर सन, और इन्होंने अपना कलेक्शन असेंबल्ड कलेक्शन अपने सन को डेडिकेटेड किया है मेजर रॉबर्ट ग्रेगरी, जिसका नाम है मेजर रॉबर्ट ग्रेगरी। 1881 टू 1918 उसका लाइफ स्पैन है। वो एक ब्रिटिश एयरमैन था जो कि लॉस्ट हो गया था ड्यूरिंग अ फ्रेंडली फायर इंसिडेंस इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उसकी डेथ हो गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो एक एयरमैन था। तो फर्स्ट थिंग तो यही आ गई मेलन क्लस की कि ये पोएम जो है वो एक सैडनेस से भरी हुई है, क्योंकि उनके जो सन है उनकी डेथ हो गई। देन literary scholar Daniel Tobin writes that Yeats was melancholy and unhappy, reflecting on his advancing age, romantic rejections by both Mordaunt and her daughter Isolde gone. Actually वो इंसिडेंस जो इनके सन के साथ हुआ वो तो था ही, उसके अलावा एक इंसिडेंस और था कि इनकी जो रोमांस की लाइफ थी, जो लव लाइफ थी, वो भी कुछ अच्छी नहीं थी। इन्होंने 2 लड़कियों को प्रपोज़ किया। फर्स्ट जो थी मॉड गॉन, वो काफ़ी फेमस है इनकी, उसने भी प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया। देन उनकी बेटी को आइसोलेट गोन को भी इन्होंने प्रपोज़ किया, उन्होंने भी इसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये भी इनकी लाइफ में काफ़ी सैडनेस वाली बात थी, मेलनक्लस हो गए थे ये अपनी एज में फिर। एंड द ऑन गोइंग आयरिश रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, और आयरिश रिबेलियन था ब्रिटिश के अगेंस्ट। Tobin reflects that the poem is about the poet's search for a lasting beauty in a changing world where beauty is mortal and temporary. एक्चुअली इस पोएम में क्या कर रहे हैं हमारे जो पोएट हैं, वो खुद मेलनक्लस हैं, सैड हैं। किन चीज़ों के लिए? बहुत सारी चीज़ें। एक तो जस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ ही है, उसकी जो सारी चीज़ें सिचुएशन देखते हुए जो भी वायलेंस हुआ उनको देख के सैड है। एंड द सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनकी लाइफ लव लाइफ जो है वो अच्छी नहीं थी। वो जिस 2 लड़कियों को प्रपोज़ किए वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, तो वो उन चीज़ों को लेके भी काफ़ी सैड थे। उन्होंने काफ़ी सैडनेस देखी कि ना लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ। अब क्या है, हम थोड़ा सा टेक्स्ट देख लेते हैं पोएम का। The trees are in their autumn beauty, the woodland paths are dry, under the October twilight the water mirrors a still sky. Upon the brimming water among the stones are 950 swans. देखो जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें पोएट ये बोल रहा है, एक उन्होंने सीनरी बताई है। ट्वेलाइट का, अक्टूबर का टाइम है, ट्वेलाइट का टाइम है, अक्टूबर का टाइम, और ट्वेलाइट मतलब अक्टूबर का महीना है और ट्वेलाइट थोड़ा शाम का टाइम है। फिर वो ऑटम सीज़न आप जानते हैं, उस टाइम का भी टाइम है, तो वो तो उन्होंने सीनरी बता दी। अब क्या चल रहा है, द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी, जो ट्रीज है वो अपनी ऑटम ब्यूटी में है। द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई, और जो वुडलैंड पाथ्स है वो एकदम ड्राई है, मतलब सब कुछ सूखा सूखा है, लकड़ियाँ गिरी हुई है। वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई। अंडर द अक्टूबर ट्वेलाइट द वाटर मिरर्स अ स्टिल स्काई, और स्काई में भी हलचल नहीं है, स्काई भी एकदम अपनी जगह ठहरा हुआ है, और उसका पूरा रिफ्लेक्शन जो है वो उस पार्क पे, कूल जो पार्क है उसके वाटर पे पड़ रहा है और एक मिरर जैसा रिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट सीनरी क्या बताई है, अक्टूबर का टाइम है, ऑटम का टाइम है, ट्वेलाइट का टाइम है, वुडलैंड पाथ्स एकदम ड्राई हो चुके हैं, सब कुछ सुना सुना सा है, और तो और जो स्काई है वो भी एकदम अपनी जगह स्थिर है, उसमें भी कोई हलचल नहीं है, एकदम स्टेबल है वो, और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो जो वाटर है कूल का, मतलब पार्क का वाटर उस पर आ रहा है और एकदम मिरर जैसा रिफ्लेक्शन दे रहा है। अपॉन द ब्रिमिंग वाटर एमंग द स्टोन्स एंड 950 स्वान्स, और उस टाइम ही उनको उस मतलब बिना हलचल वाले पानी में, कूल पार्क वाले पानी में उन्होंने कितने स्वान्स देखे, 950 स्वान्स। उन्होंने 59 नहीं बोला है, उन्होंने 950 ऐसे करके बोला है, 950 स्वान्स उन्होंने देखे। ठीक है, अब उन्होंने 59 स्वान्स क्यों बताए हैं, क्योंकि वो खुद अंदर से दुखी हैं, उनको लव जो है वो नहीं मिल रहा है,
जिन लड़कियों को उन्होंने प्रपोज किया उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, तो वो पूरे 60 स्वान नहीं बताते हैं, वो बाकी सब एक्चुअली स्वान हमेशा अपने पेयर के साथ होते हैं। तो जो बाकी स्वान है वो सब अपनी पेयर के साथ हैं, बट एक स्वान जो ऐसा है वो अपनी पेयर के साथ नहीं है। तो उन्होंने 60 स्वान ना बता के 59 स्वान बताए हैं। 59 स्वान्स क्यों बताए? ताकि एक जो ऐसा है जिसका पेयर नहीं है, बाकी सब अपनी पेयर के साथ बैठे हुए, अपने जोड़े के साथ बैठे हुए। देन क्या बात करते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, द 19th autumn has come upon me since I first made my count. I saw before I had well finished, all suddenly mount and scared wheeling in great broken rings upon their clamorous wings. अब सेकंड स्टेंजा में ये बात करता है, द 19th autumn has come upon me, मतलब जो 19वां ऑटम देख रहा हूँ मैं अपनी एज का, मतलब अभी वो कौन सी एज में है, 19 की एज में, और वो कह रहे हैं कि मैं ये 19वां ऑटम अपनी एज में देख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ये क्या है, मतलब मेरे को अभी भी कुछ भी अच्छा नहीं इतने टाइम में एक्सपीरियंस हुआ है। सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट आई सॉ बिफोर आई हैड वेल फिनिश्ड, और इस टाइम में वो जब अपना 19th ऑटम देख रहे हैं, तो मैंने बताया था कि जब इन्होंने पोएम लिखी है तो ये अपनी फ्रेंड लेडी ग्रेगरी के साथ में अपने होम में कूल पार्क के पास में रहते हैं, वहाँ है ये। तो ये कह रहे हैं कि जब भी मैं उन स्वान्स को काउंट करना चाह रहा हूँ, अब इस टाइम में 19 जो ऑटम है इसमें जब मैं काउंट करना चाह रहा हूँ उनको, बट वो मेरे से काउंट नहीं हो पा रहे हैं, मैं जैसे ही काउंट करता हूँ वो उड़ जाते हैं। ठीक है, सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट आई सॉ बिफोर आई हैड वेल फिनिश्ड ऑल सडनली बाउंड, कि जैसे ही मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, फिनिश करना चाहता हूँ उसको, उतने में वो उड़ जाते हैं। एंड स्कैर्ड व्हीलिंग इन ग्रेट ब्रोकन रिंग्स अपॉन देयर क्लैमरस विंग, और अपने विंग्स से आवाज़ करते हुए, उनकी विंग्स से जो फड़फड़ की आवाज़ होती है वो करते हुए वो उड़ जाते हैं। देन क्या बात करता है, I have looked upon those brilliant creatures and now my heart is sore. All's changed since I hearing at twilight the first time on this shore the bell beat of their wings above my head trod with a lightened tread. इस स्टेंजा में ये बात कर रहा है, आई हैव लुक्ड अपॉन दोज ब्रिलियंट क्रिएचर। अब वो स्वान्स की तारीफ भी कर रहा है कि मैं इनकी तरफ ब्रिलियंट क्रिएचर की तरफ देख रहा हूँ कि जो नेचर ने इतना सुंदर ब्रिलियंट क्रिएचर बनाया है। एंड नाउ माई हार्ट इज सोर, अब मेरा हार्ट जो है वो सोर है, दुखी है। क्यों है? ऑल चेंज सिंस आई हियरिंग इट ट्वेलाइट द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शोर, कि मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ आया था उसमें और अभी जो 19 जो मेरा ये है ऑटम है, उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम जब यहाँ आया वैसा एटमॉस्फेयर अब यहाँ नहीं है, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि जैसे मैं स्वान्स को काउंट करना चाह रहा हूँ वो उड़ जाते हैं, तो अब सब कुछ चेंज हो गया है। All changed since I hearing at twilight the first time on this shore the bell beat of their wings above my head trod with a lighter tread। और जब मैं सबसे पहले यहाँ आया था, जब मैंने फर्स्ट यहाँ का ऑटम देखा था, तो मैंने देखा था कि वो जो स्वान्स हैं उनकी आवाज़ सुनहरी सुनहरी सी मेरे हेड पे हो रही है, बट अब ऐसा नहीं है। अब मैं उनको काउंट करना चाहता हूँ तो वो उड़ जाते हैं। तो इन सब ईयर्स में सब कुछ चेंज हो गया है। देन unweird still lover by lover they paddle in the cold compassionable streams or climb the air, their hearts have not grown old, passion or conquest wander where they will attend upon them still। देखो कंपैनेबल, अब ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जो स्वान्स है ना वो तो अभी अपनी जगह हैं और अपने पेयर के साथ बैठे हुए हैं, वो उस कोल्ड वाटर में वैसे ही हैं अपनी लवर के साथ में जैसे कि वो पहले थे। उनका जो हार्ट है वो ग्रोन ओल्ड नहीं है, मतलब वो बूढ़ा नहीं हुआ है, वो अभी भी यंग है, वो अभी भी प्यार कर रहे हैं, बट वो एक तरह से खुद ये चीज़ सोच के दुखी है कि मैं ओल्ड हो गया हूँ, मुझे ये सब मिला नहीं है और ना ही मुझे मिलना है। वो फ्यूचर भी सोच रहा है और पास्ट भी सोच रहा है कि मुझे ना तो पास्ट में ये सब मिला, ना मेरे फ्यूचर में मुझे ये सब मिलना है। और ये कितने लकी हैं जो अपनी पेयर के साथ बैठे हुए हैं, और पहले भी ऐसे ही बैठे रहते थे, अभी भी अपना लव वैसे ही एक दूसरे के लिए शो कर रहे हैं। इनका हार्ट अभी भी एकदम यंग है, ओल्ड नहीं हुआ है। पैशन और कॉन्क्वेस्ट वंडर दे विल अटेंड अपॉन दैम स्टिल, अभी भी ये उतने ही पैशन में है और ये जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकते हैं, इनको कोई रोक नहीं है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही इस पूरे स्टेंजा में है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा क्या है, बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर मिस्टीरियस ब्यूटिफुल among what rushes will they build, by what lakes age of pull, delight men's eyes
व्हेन आई अवेक सम डे टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे। अब क्या बात कर रहा है, बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर, कि अभी भी ये इस स्टिल वाटर में है, मिस्टीरियस ब्यूटीफुल, बहुत मिस्टीरियस लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एमंग वॉट रशेज विल दे बिल्ड, पर अब पता नहीं कि वो अपना बिल्ड मतलब अपना घर कहाँ बनाएं, अब वो कहाँ जाएं। अभी तो ये इस वाटर में है, अपनी पेयर के साथ बैठे हुए हैं, बहुत मिस्टीरियस, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, अभी भी यंग हैं ये, अभी भी इनका पैशन बहुत अच्छा सा है और ये जहाँ चाहे वहाँ उड़ सकते हैं, इन पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ये बाउंड फील नहीं करते हैं खुद को, ये हमारी तरह नहीं है। इनडायरेक्ट वो यही बोलना चाह रहा है, ये हमारी तरह नहीं है, ये जो चाहे कर सकते हैं। और इनका लक अच्छा है कि इनको इनका लवर इनके पास है, इनको अपना लव मिला हुआ है। बट ये लास्ट स्टेंजा में यही बात कर रहे हैं, बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर मिस्टीरियस ब्यूटीफुल, अभी तो ये मिस्टीरियस ब्यूटीफुल इसमें बैठे हुए हैं। एमंग व्हाट्स रशेज विल दे बिल्ड, बट अभी नहीं, नेक्स्ट इनका कुछ पता नहीं है कि वो अपना बिल्ड कहाँ करें, क्या बिल्ड करें, अपना घर कहाँ बनाएं। बाय व्हाट्स लेक एज और पुल, पता नहीं कौन सी एज में बनाएं, कौन सी पुल में बनाएं, कहाँ चले जाएं, इनका कुछ पता नहीं है। डिलाइट मेन्स आईज व्हेन आई अवेक सम डे टू फाइंड दे हैव फ्लोन अवे, डिलाइट मेन्स आई, और पता नहीं फिर वो कौन सा इंसान होगा जो इनकी ब्यूटी को देखेगा और वो अपने आप की आंखों में डिलाइट मतलब खुश होगा। मतलब अभी तक तो क्या हो रहा था, हमारा जो W.B. येट्स है वो सब ये सीनरी देख रहा था, इस नेचर को देख रहा था और अपने आप में बहुत खुश हो रहा था। बट अब नेक्स्ट क्या होना है, कौन सा जो मैन है वो इनकी ब्यूटी को देखेगा, कुछ पता नहीं। When I awake some day to find them have flown away, बट एक दिन क्या हुआ, मैं जैसे ही जागा मैंने देखा कि ये सब उड़ चुके हैं। तो लास्ट में ये यहीं पे पोएम ख़त्म हो रही है। इस पोएम में यही कहा गया है कि जो हमारा पोएट है वो अंदर से बहुत दुखी है। दुख के कारण मैंने बता दी कि एक तो वो वर्ल्ड वॉर का टाइम ऐसा चल रहा है, देन सेकंड थिंग कि उसके जो बिलव्ड है वो जिससे वो लव करता है, उन्होंने कभी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोएम लिखी है। तो इसमें हम ऑटोबायोग्राफिकल टच बोल सकते हैं, इसमें हम बोल सकते हैं कि उसकी जो ट्यून है वो मेलनकलस है, सैड है, सैडनेस इन ओल्ड एज, और उसकी ओल्ड एज में सैडनेस क्या होती है वो दिखाई गई है। नेचर वर्सेस ह्यूमैनिटी दिखाई गई है, नेचर के साथ ह्यूमैनिटी का क्या मीनिंग है, मतलब कैसे कॉन्ट्रास्ट किया है, कैसे कंपैरिजन किया है राइटर ने, है ना। लॉस दिखाया गया है कि क्या क्या लॉस हो जाते हैं, लॉनलीनेस, सॉलिट्यूड, ऑब्वियसली जो हमारा पोएट है वो लॉनलीनेस में है, सॉलिट्यूड में है, तभी तो उसने ये पोएम लिखी है। और इसकी बस यही द वर्ल्ड्स वंस एट कूल इन ब्लैक मॉर्नफुल पोएम, ये एक मॉर्नफुल पोएम है, इसे हम सैड पोएम ही बोलेंगे, तो ये सैड पोएम है। बट इसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो पोएट है वो कह रहा है कि ऐसी ब्यूटी हमें देखने को अब पता नहीं कब मिलेगी, ये स्वांस पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो कोई भी चीज़ लाइफ में एक जगह फिक्स नहीं है, बट फिर भी हम ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा ये लोग अच्छे हैं, हम लोग ओल्ड हो चुके हैं और ये इनका पैशन हमेशा यंग रहेगा। अब आप इसके खुद नोट्स बनाएं और इसको अच्छे से कर लें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको W.B. येट्स का इंट्रोडक्शन लिख के आना है, आपको वाइल्ड स्वांस एट कूल जो पोएम है इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद में इसके इंट्रोडक्शन में आएगा कब पब्लिश हुई है पोएम, क्या क्या है पोएम में, कौन से इसका राइमिंग स्कीम है, ठीक है, कितने स्टेंजाज हैं, ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद में आप जो थीम है इसकी, जैसे मैंने बहुत सारी बता दी, लॉनलीनेस, नेचर वर्सेस ह्यूमैनिटी, है ना, सैडनेस, इसकी जो ट्यून है मेलनकलस, उसके बारे में लिख सकते हैं आप। पूरी समरी लिखेंगे, फिर कॉन्क्लूजन लिखेंगे। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।